ठीक है, तो उसने वीडियो में नॉर्मेलिटी यूज किया हुआ है। नॉर्मेलिटी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो हम लोग कंसंट्रेशन का वर्ड यूज करेंगे। सिर्फ वीडियो से आइडिया लेना है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखेंगे जरूर, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉर्मेलिटी क्या है। दूसरी क्या चीज है कि उसने उसको मैग्नेटिक स्टीरर से कॉनिकल फ्लास्क खेला है। हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग जब लैब में टाइट्रेशन करते हैं, जब तुम लोग ए लेवल में करोगे, तो आप लोग क्या करोगे? ब्यूरेट लगाओगे ऊपर, नीचे इसमें गिराओगे चीजें, ठीक है, अल्कली या एसिड गिराओगे, और हाथ से इसको हिलाते रहोगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला दोगे इसको। उन्होंने एक स्टिरर लगाया हुआ है, तो वो स्टिरर देख के परेशान नहीं होना कि भाई ये क्या लगाया हुआ है और किसके ऊपर रखा हुआ है। हम तो सिर्फ टेबल में रखेंगे या हाथ पे पकड़ के खड़े हो जाएंगे कॉनिकर साथ। तो वो एडिशनल चीज है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। तो वो जो वीडियो में दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट देखना, और नॉर्मेलिटी का वर्ड कंसंट्रेशन ही है, ठीक है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना। और तीसरी बात ये कि उसका जो एक्सेंट है वो बहुत अजीब सा है, लेकिन पूरे यूट्यूब पे मुझे सबसे अच्छी वीडियो इस बंदे की मिली है जिसने इस तरह समझाया है ना, और जिसने उसने एनिमेशन बनाई है। तो मुझे किसी अंग्रेज की जो है इस वीडियो अच्छी नहीं मिली। सबसे अच्छी वीडियो मैंने कुछ आधा घंटा लगा के ढूंढा है, मुझे सबसे अच्छी इसकी मिली है। बस उसका थोड़ा सा एक्सेंट अजीब सा है। ये लो। Hello friends, in this animation I am going to explain about acid-base titrations or neutralization titrations. To understand the concept of acid-base titrations, let's take the example of reaction between hydrochloric acid sample solution and sodium hydroxide standard solution. So reaction will be HCl plus NaOH is equal to NaCl plus H2O. In this titration, HCl is taken as a sample where concentration is unknown and NaOH is standard with non-concentration of 0.1 normal. So let's proceed for titration. हसन, तुम्हारे पास स्क्रीन ब्लैक क्या मतलब? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आ रहा आगे? अभी तक नहीं आया? तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा, आ जाएगा देखो, वरना ये वीडियो का लिंक डला हुआ है, ये देख लेना। अच्छा, इसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की अननोन रखी थी, इसने शायद HCl की अननोन रखी हुई है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसने बताई हुई है 0.1 N लिखा हुआ है नॉर्मल। ठीक है, हमारे लिए ये 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसने उल्टा किया हुआ है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये फ्लास्क में लेगा, HCl ये ब्यूरेट में लेगा। बस देख लो इसको जल्दी से ही क्या कहना चाह रहे हैं। And different apparatus which will be used during the titration are magnetic stirrer, burette stand, conical flask, burette, pipette and funnel. So first we will fill the 50 ml burette by 0.1 normal NaOH standard solution by the help of a funnel like this. After filling the burette by 0.1 normal NaOH, we will transfer 10 ml of HCl solution in the conical flask by the help of a pipette like this. Now we will put the magnetic bead into the conical flask and start the magnetic stirrer. After that, we will add 2 to 3 drops of indicator solution like phenolphthalein to determine the color change at the equivalence point or end point. Now we will start the titration by opening the knob of the burette like this. Initially, the HCl solution containing phenolphthalein indicator is colorless, but at the end point it changes from colorless to pink, which will be persistent for the long time like this. Now let's understand the mechanism of this titration. So first HCl will be present in the form of H plus and Cl minus,
When we will add phenolphthalein indicator, it will not react with H plus or Cl minus because of weak acidic nature of phenolphthalein. Now we will add NaOH from the burette, which is present in the form of Na plus and OH minus N and alkaline in nature. So Na plus N will react with Cl minus N and forms NaCl, while OH minus N will react with H plus N and forms H2O. At the equivalence point, all NaOH will react with all HCl and pH will be neutral or 7. Now, if we will add an extra drop of NaOH, then due to presence of OH minus N, solution will become alkaline and it leads to ionization of phenolphthalein, which will further react with Na plus N and forms pink color complex. On the other hand, OH minus N of NaOH will react with H plus N of phenolphthalein and it will form a water molecule. Due to the presence of pink color complex, complete solution will become pink at the end point. Finally, we will note the reading of the burette for further calculation. Here it is 8 ml. Now calculation of normality is done for HCl by using the formula N1V1 is equal to N2V2. Here N1 is unknown, which is normality of HCl, which will be determined. V1 is equal to 10 ml, which is the volume of HCl taken in the conical flask. N2 is the normality of NaOH, which is 0.1 normal, and V2 is 8 ml, which is burette reading. Now put all these values in the equation, so it will be N1 into 10 is equal to 0.1 into 8. So it will be N1 is equal to 0.1 into 8 divided by 10. So it will be 0.8 divided by 10 and the final normality of HCl will be 0.08. And this is the complete details about acid base titration. You can go through our playlist for more. सर ये फॉर्मूला रिपीट कर दें। अच्छा सही है। देखो ये फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला तो छोड़ दो, ठीक है। N1V1 हमारा ये फॉर्मूला है ना, तो यही फॉर्मूला है ये वाला C1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू C2V2 ओवर N2, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसने जो इंडिकेटर को इतना डिटेल में समझाया ना कि वो अंदर जाके किससे रिएक्ट हो रहा है, वो हमें सब नहीं डिटेल में चाहिए। हमें बस ये समझना है कि पहले सिर्फ नीचे OH नेगेटिव आइन था, H पॉजिटिव आइन था नीचे सिर्फ पहले, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता OH नेगेटिव आइन गिरना शुरू हुए, जब OH नेगेटिव आइन ज्यादा हो गया तो इंडिकेटर ने OH नेगेटिव आइन वाला कलर दे दिया, सिंपल, सही है, एल्कली वाला कलर दे दिया फिर इंडिकेटर ने, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला है हमारे पास। तो कोई सवाल किसी का यहाँ पे? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। सर ये हमारा वाला फॉर्मूला रिपीट कर दें सर, उन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रही है आपस में सर, वो ज्यादा सिंपल था। देखो उसका फॉर्मूला तो भूल जाओ ना, तो उसमें तो नॉर्मेलिटी ले रहा है। हमारा फॉर्मूला ये था कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एसिड और अल्कली का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने जो एसिड लिया ना वो H2SO4 ले लिया, अल्कली मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इनकी टाइट्रेशन करा रहा हूँ, तो ये बनाता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इसको इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। लेट से मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे फ्लास्क के अंदर जो है वो H2SO4 लिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता थी, मैं कह रहा हूँ 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और मैंने फ्लास्क में खुद से लिया, तो जाहिर है जो मैं वॉल्यूम लूंगा वो मुझे भी पता है 25 सेंटीमीटर क्यूब है, पिपेट से मैंने मेजर की हुई है। जो अल्कली जो मैं इसमें गिरा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन मुझे कितना वॉल्यूम नीचे गिराना है सारा का सारा H2SO4 न्यूट्रलाइज कराने के लिए, वो मैं मेजर कर लूंगा ब्यूरेट से। लेट से मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब गिरा दिया। अब अगर मुझे कंसंट्रेशन अल्कली की निकालनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, C1V1 ओवर N1, C2V2 ओवर N2। अब
ये जो C1 वाली है ये मैंने एसिड को दे दिया 1 वाला, और ये मैंने बेस को दे दिया। मतलब C1V1 की जगह अगर मैं CAVA लिख देता तो शायद तुम्हें इतनी मुश्किल ना हो, और C2 की जगह मैं CBVB बेस लिख दूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा काम। ठीक हो गया। अब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मुझे पता है 0.2 है, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है वो 25 है। अच्छा यहाँ पे जो है उसने फॉर्मूले में तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताया, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि अक्सर HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन में तो 1:1 का रेशियो होता है ना, यहाँ पे देखो 1:2 का रेशियो है। तो यहाँ पे एसिड के लिए तो तुम Na की जगह 1 रख दोगे, लेकिन जब बेस के एंड रखोगे ना तो वो फिर तुम 1 नहीं बल्कि 2 रखोगे यहाँ पे। सही है। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ बेस तो तुम्हें निकालना था ना, वही तो तुम्हें नहीं पता था। वॉल्यूम कितना लगा न्यूट्रलाइज कराने के लिए बेस का 50, वो 50 रख दिया तो तुम यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ बेस निकाल लोगे। ये फॉर्मूला देखो रेशियो मेथड से ही बना है ना। रेशियो मेथड से क्या बना है, अगर मैं बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स नीचे पड़े हुए थे तो तुम क्या करोगे CV से निकाल लोगे। क्या करोगे 0.2 कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कितना है 25। अब तुम्हें डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो हमने सेंटीमीटर क्यूब लिया था, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिया था, कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन यहाँ क्योंकि तुम अलग अलग करो तो तुम्हें फिर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालने पड़ेंगे। अच्छा तुम्हें पता है कि एज पर इक्वेशन 1 मोल ऑफ H2SO4 के लिए कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है, 2 मोल। अब लेट से तुमने यहाँ पे जो मोल्स निकाले H2SO4 के वो बताओगे जरा कितने निकलेंगे, कैलकुलेटर पड़ा है किसी के पास? ये आ रहे हैं 0.005 मोल लग रहा है। मुझे पता है 1 मोल ऑफ H2SO4 के लिए 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। यहाँ H2SO4 कितना है 0.005 मोल है, तो इसके लिए कितना मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, वो कैसे निकालूंगा 2 इंटू 0.005 1 इंटू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 0.005 इंटू 2 0.01 0.01 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है। ठीक है। और इतना मोल मैंने जब मैं डाल दूंगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब मैं 0.01 मोल डाल दूंगा तो एंड पॉइंट आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, टाइट्रेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। और ये मैंने जब एंड पॉइंट आया तो मैंने कितना वॉल्यूम डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है कि जब मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब डाला तो मैंने कितने मोल्स ऐड करवा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 0.01 मोल्स ऐड करवा दिए। सही है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बेस या मोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बेस लगाऊं तो जब मैंने 0.01 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो कितनी वॉल्यूम मेरी खर्च हो गई है 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब में 0.01 मोल आए तो 50 एक्सपोनेंट -3 डेसीमीटर क्यूब में करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस आ जाएगी। ये सारा काम जो है ना, ये पूरा का पूरा काम ये फॉर्मूला अकेला करके दे रहा है। यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करा है वो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है। और ये हमने 0.005 इंटू 2 जो करा था वो यहाँ पे एज इट इज आ गया। और जब डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करा था वो इस फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दोनों सेम है। समझ आई ये बात? कंफ्यूजन क्या है अब? मुर्तजा तुम्हें आ गई, गुड है। मोमल आप बताओ, हसन आप बताओ, क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा देखो मुझे एक काम करो, मेरा ये मैंने ना गूगल क्लासरूम पे डाल दिए हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जरा मुश्किल है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, पर आपको चीजें याद होंगी ना, आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। तो जरा अपने हैंडआउट्स को पढ़ो, तैयारी करो, और ये क्वेश्चन जो है ना वो 1 बाय 1 करना स्टार्ट करो। थोड़े थोड़े करो, समझ नहीं आए पूछो, तुम्हारे पास पूरा हफ्ता है, पूछते रहो। फिर जो सैटरडे संडे आएगा ना, अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, वो वाले क्वेश्चन जो आप लोगों को समझना है। इसी तरह पेपर 2 के भी है, पेपर 2 के बड़े मुश्किल लगेंगे, शॉर्ट्स वाले नई चीजें हैं, तो फिर हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे जो आप लोगों ने सर मारे हैं और आपको समझ नहीं आई है, ताकि आपका एसिड एंड बेसिस पक्का हो जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीकेंड पे जो है हम लोग फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे, तो तुम लोग के पास एक हफ्ता है, एक हफ्ते में कर लो ये सारा।
एसिड एंड बेसिस के हैंडआउट्स मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी कहा था कि हैंडआउट